Hello all. So today I am going to discuss a topic from biotech principles and process. The topic is process of forming recombinants. So here we go. So suppose there's a patient who is suffering. There's a patient who is suffering from diabetes mellitus, uh, a disease. So what is happening? What is the symptom of this disease? Is that the person is producing very less amount of insulin. um, he or she is producing very less amount of protein. Insulin is a protein, so protein, insulin. Insulin is required for a person to survive because it reduces the blood glucose level, and thus in this disease diabetes mellitus, if we check the blood of the person, inside the blood we will see the blood glucose level is very high, which is kind of dangerous. So to protect the person, we need to give the person insulin extrinsically, that is from outside. But the problem is that from where we will get insulin. One probable solution to this problem can be that we can get insulin from like slaughtered cattles or guinea pigs or pigs. Uh, we can do that. In fact, this kind of solution has been taken in the past also. But the problem is that, as we know, when any foreign particle like insulin from any cattle, it will considered as foreign when it will enter inside our body, and as a result, due to immunity of the person, the our body the patient's body will start fighting, will create a fight against this foreign particle, and it can cause allergy to the person. So now, so this solution is also not very suitable. So again, scientists started finding another solution to this problem, and there comes the boom of science, that is biotech. Biotech came as a savior for this problem, and by using biotech we can create recombinant uh, DNA, and from that recombinant DNA we can create the protein. For in this case we can create insulin also, insulin. And by creating insulin extrinsically, we can save a patient from suffering from diabetes mellitus or any other disease. So this was the solution to this uh, going on problem. Now we will see stepwise that how we can produce a recombinant protein, like from the beginning to the end. So the first step in this process, in this creating a recombinant DNA, and from that recombinant DNA producing a protein, is the first step, that is isolation of DNA. Isolation of DNA. Now, which DNA? In our case, we are taking the example of insulin. So we need to isolate the gene of insulin from a human DNA. Now, how we will do that? I will explain in detail. So, if we are in if we want to isolate DNA from a bacteria, so suppose this is a bacterial cell. This is a bacterial cell. We know in bacteria the cell envelope is made up of three layers: cell membrane, then cell wall, and then the capsule. So inside the bacterial cell there is this nucleoid, and inside the nucleoid there is this gene. So if we need to extract this DNA, because inside the DNA there may be our target gene, suppose here. So if we need to get, if we want to get this gene, we need to extract this whole nucleate outside. But in order to do that, we need to break open the cell. To break open the cell, we need to get rid of the cell wall of the bacteria. So to get rid of the cell wall of the bacteria, we use enzyme called lysozyme. Lysozyme. This is for bacterial cell. Now you will ask,
Ma'am, what for plant cell? We know for plant cell, the cell wall is made up of cellulose. So what enzyme we can use is that cellulase. We know that whenever and anything ends with ase, so that is the enzyme required to break the previous term, that is cellulose. And if the cell is a fungal cell, we can use the enzyme chitinase or chitinase, because we know the fungal cell wall is made up of chitin. So that was about how to break the external cell wall of any cell in which our target DNA, target gene is located. Again, we know that we want to isolate the insulin gene, right? We want to isolate the insulin gene, and we know insulin is present in human eukaryotic cells. And we know that let's take a look at the eukaryotic cell. This is a eukaryotic cell, human cell, suppose, and inside the human cell there is this nucleus. Inside the nucleus there is this DNA. Now we know as the DNA is very long. So this is a human cell. Inside the cell there is this nucleus, and inside the nucleus there is this DNA. As we know, DNA is very long, and compared to nucleus, a DNA is 2.2 meter long, while a nucleus is in like micrometer or nanometer. So to accommodate this long of a DNA inside a very small nucleus, what we can do is we can condense it into chromatin. So how we condense? There are these histone proteins, and around the histone proteins, we generally wrap a DNA, and that's how we package the DNA, long DNA, inside a comparatively small nucleus. So this is the histone protein. This, if we zoom into this, this is a histone protein, and there is this DNA wrapped around it. Now again, if we need to isolate, take out this DNA outside the human cell, we need to get rid of this histone protein also. This is the histone protein. Histone protein. And what is our aim here? We need to isolate our DNA. We need to isolate, make it free from any other substance. So as this, so this is this green thing, is the green ball is the histone, and this yellow string like thing is the DNA, and this whole thing is called nucleosome, right? So when we are trying to break open the cell wall and everything by using enzymes like lysozyme or cellulose or chitinase, the all the content inside the cell, like there will be some apart from, like DNA alone cannot stay inside the nucleus, so there will be some other things like some proteins will be there, or even some RNA can also be there. मतलब सिर्फ डीएनए में तो वो तो नहीं रहेगा, ये क्या सेल के अंदर आरएनए भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा। तब जब हम इस सेल को ऐसे ब्रेक ओपन करेंगे तो सारा कुछ कंटेंट ही बाहर निकल आएगा। तो अगर हम इस सपोज वी आर ब्रेकिंग दिस सेल by using any cellulose, chitinase, etc., we are breaking it open, and we are pouring all the content in a test tube, pouring all the content in a test tube. So all this DNA and protein and RNA is coming inside the test tube. So we will move on to the next slide and we'll continue this thing. So we are breaking it open into a test tube, and सब इसमें सेल का जितना भी कंटेंट था सब सपोज के इसमें आ गया, कुछ प्रोटीन भी आ गया, कुछ आरएनए भी आ गया, ये आरएनए आ गया, कुछ डीएनए भी आ गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ ये डीएनए ही चाहिए, लेकिन ये सब टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, वो भी बहुत छोटा लेवल पे, बहुत छोटा। तो हमको तो आंखों से दिखेगा नहीं कि हमको सिर्फ डीएनए ही यहाँ से आइसोलेट करके निकालना है। हमको आरएन मेक श्योर करना है कि ये प्रोटीन भी हट जाए और ये आरएनए भी हट जाए। इसको हम हटाएंगे कैसे? इसके पास भी बायोटेक इज अ वेरी वेरी beneficial thing for us, because by using biotech we can do a lot of things. So how we will do that? How we will get rid of this DNA or RNA? Solution is also there. By using protease enzyme, by using protease, we will add this enzyme protease here, protease, and protease enzyme will digest the proteins. And we could also use another enzyme called ribonuclease. Ribonuclease,
By using ribonuclease, the RNA will get digested. So now we are only left behind with our desired thing, that is the DNA, and then we can again continue our thing. So now nothing like RNA is not even there and proteins are not even there. There is only DNA in the test tube. Now how to isolate that only DNA thing from the test tube is that again, let's look at the test tube. After adding protease and ribonuclease, there is nothing except the DNA. Now DNA ऐसे ही ऊपर नहीं चला आएगा, हम कुछ और भी चीज ऐड करना पड़ेगा जो कि है chilled ethanol. So now if we add chilled ethanol in this test tube, chilled ethanol in this test tube, what will happen is that the DNA will come at the surface. DNA ऐसे एक suspension बना के ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा. और अगर हम इस वक्त is immediately at this point of time, if we insert a glass rod into it, if we insert a glass rod into it, and अगर हम इस glass rod को ऐसे direction में ऐसे stir करें, तो ये DNA क्या होगा, इस glass rod के आजू बाजू में ऐसे ऐसे सस्पेंड हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं by when we insert this DNA, when we are inserting a glass rod and then the DNA can be separated out, DNA can be removed. This process is called spooling. SPOOLING, spooling. Now it is to be noted that this word spooling is not given in NCERT text, but it is mentioned, this word is mentioned below a diagram given in NCERT. So it is a very interesting fact that a PYQ came in NEET on spooling. Now many students can say that no ma'am, spooling is not in NCERT, but it is in NCERT, not in text but in the diagram. So from this we can learn a lesson also, that we need to we cannot even leave any diagram from NCERT. Even diagram in NCERT is also important. So this was the first step, that is isolation of DNA. Let's come to the next step, cutting of DNA at specific location. Cutting of DNA. So how we will do that? And even if you want to isolate our fragments. So suppose this is a long DNA. So we have isolated the DNA in our previous step. In this step, we need to isolate or take out the required gene. So this is our required gene. यहाँ यही वो जगह है जहाँ पे हमारा जो टारगेट प्रोटीन है इंसुलिन, वो उसका प्रोटीन है, उसका जो जीन वहाँ पे, इंसुलिन जीन यहाँ पे है और पूरा ये डीएनए है. तो हम यहाँ से कैसे निकालें, इस पूरे लंबा सा डीएनए से हम कैसे इस इंसुलिन को निकालें वो देखेंगे. सो इन दिस स्टेप वी विल यूज सम प्रोटीन्स, इसको हम कहते हैं आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ऐसे आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे. यूज करने से हमको क्या, ये मॉलिक्यूलर सीजर है, अगर इससे हम कट करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक ये पीस निकल जाएगा डीएनए का, एक पूरा ये पीस निकल जाएगा डीएनए का जिसके अंदर हमारा इंसुलिन का जीन छुपा हुआ है, और एक और शायद ऐसा भी पीस आ जाएगा, ऐसा पीस आ जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा डीएनए का ऐसा आ जाएगा. तो अगर हम ऐसे, तो 3 हमारे पास फ्रैगमेंट हो गए, ये फर्स्ट फ्रैगमेंट, ये सेकंड फ्रैगमेंट और ये थर्ड फ्रैगमेंट डीएनए का. अब हम तो ये सभी हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हमको कुछ दिखेगा नहीं बाहर से कि कौन सा तीन फ्रैगमेंट आया, फ्रैगमेंट नंबर 2 के अंदर हमारा इंसुलिन जीन है. तो हम इसको हमारा अभी टारगेट वही है कि इसको हमको आइसोलेट करना है, इस सेकंड फ्रैगमेंट को. तो इसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे वो दिखना है. तो हम एक एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे. एक जेल लेंगे, एगारोस जेल, एगारोस जो रेड एल्गी होता है उसमें से मिलता है एगारोस जेल, उसका एक जेल बनाएंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे. सो वी नो ऑलरेडी, बाय नाउ वी नो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. by applying current we can isolate DNA fragments. So we will place a negative electrode here which is called a cathode, and again a positive electrode here which is called an anode. By now we know what is a cathode and what is an anode. Positive electrode is called an anode and a negative electrode is called a cathode, and we will load our DNA at the cathode side. So we will load our DNA here, somewhat here,
in here. So the DNA fragment, and as we apply current in this gel, the DNA will start moving to from the negative electrode towards the positive electrode. Now you can ask me, why ma'am, why the DNA will run towards the anode? Because DNA are negatively charged. Why DNA are negatively charged? Because they have phosphate group in it. So DNA are negatively charged, and that's why DNA will move towards the positive electrode. Now, like this way, the negatively charged DNA will move, and after the completion of this agarose gel electrophoresis, we will get to see, and after applying ETBR and uh, viewing it under UV light, we will get to see there are three bands separated according to their size. Like the third fragment was the heaviest, so it will be at the top, and this second fragment was at the was intermediate size, so it will be at the middle. and ये जो first वाला fragment है ये बहुत light था, तो यहाँ पे ये वाला जो fragment है ये पहले ही रन करके यहाँ पे आ जाएगा। तो एगोडोस जेल जो है, जो अब हम इससे इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो ये डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करता है, डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये नोट करने वाली चीज है, साइज के बेसिस पे सेपरेट आउट हो जाएगा। सो जो लाइटेस्ट होगा वो बहुत ही मतलब जल्दी रन करके एकदम नीचे आ जाएगा। जो इंटरमीडिएट साइज का होगा वो कहीं पे बीच में आ जाएगा, और जो हेवीएस्ट होगा, थर्ड फ्रैगमेंट जो हेवीएस्ट था, वो एकदम ही ऊपर, वो बहुत धीरे धीरे माइग्रेट करेगा। तो हमको पता है कि हमारा जो इंसुलिन जीन था वो सेकंड इंटरमीडिएट साइज के फ्रैगमेंट में था। तो हमको पता चल गया कि ये जो सेकंड वाला जो जो हमारा बैंड है, उसके अंदर में ही हमारा जो टारगेट जीन है इंसुलिन, वो छुपा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम एक सीजर, छोटा सा सीजर ले सकते हैं, हम इस जेल से इस पार्ट को कट आउट कर देंगे, कट करके निकाल देंगे। निकाल देने के बाद हमारे पास ये डीएनए का पीस आ गया। अब हम इस पीस का सीरियल डायल्यूशन करके इसमें से जो हमारा जो टारगेट जीन था इंसुलिन, इसको हम निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को भी एक नाम है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। इल्यूशन। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो जीन था वो हमने गैदर कर लिया, हमको मिल गया। तो जीन मिलने के बाद तो हमको, हमारे पास ये जीन तो अब आ गया, जो जीन था हमको चाहिए था इंसुलिन का जीन। इंसुलिन का जीन अब हमारे पास प्रेजेंट है। इंसुलिन का जीन अब हमारे पास प्रेजेंट है। अब इंसुलिन का जीन को हम इकोलाई सेल्स में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम, अगेन वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम हियर। अब प्रॉब्लम क्या आ गया हमारे रास्ते में? प्रॉब्लम ये आ गया कि हम जो इंसुलिन का जीन है वो डायरेक्टली ऐसे बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। तो उसके लिए एक वेक्टर चाहिए होगा। वेक्टर क्या क्या बनेगा यहाँ पे? प्लाज्मिड। तो यहाँ पे एक प्लाज्मिड है, यहाँ पे। इस प्लाज्मिड के मदद से हमको इस जीन को बैक्टीरियल सेल के अंदर लेके जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को अगेन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यहाँ पे कट करेंगे, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ऐसे ओपन हो गया। और अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू लेंगे, जिसको हम कहेंगे लाइगेस, जो कि एक ग्लू की तरह काम करेगा। इस एंजाइम में ग्लू की तरह काम करेगा। और अगर हम इस प्लाज्मिड को देन लाइगेस की मदद से यहाँ पे जो हमारा इंसुलिन का जीन था वो ऐसे इंसर्ट कर देंगे, तो ये हमारा बन गया क्या, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मिड भी है और हमारा इंसुलिन का जीन भी, जो टारगेट जीन था वो भी है, तो ये हमारा बन गया आरडीएनए। अब हम हमारा जो third problem is that this gene can be of very, like very small, in very small amount. We need to increase the uh, amplify amplify the amount of gene of insulin। ये कैसे करेंगे हम? इसके इसके लिए भी सोल्यूशन हाजिर है। इसका सोल्यूशन क्या है? साइंटिस्ट है कैरी मुलिस। इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर आविष्कार किया जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर। पीसीआर जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा जीन के पीस को भी हम एम्पलीफाई करके बहुत बहुत मिलियन टाइम्स बना सकते हैं। कि एक कॉपी अगर देंगे, इससे बहुत 1 बिलियन या फिर 30 बिलियन तक भी हम कॉपी बना सकते हैं। वो भी कितने टाइम में? 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर। कैसे बन जाएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो दिस इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस में होगा, 3 स्टेप होगा इसमें। फर्स्ट स्टेप इज डीजेनरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है 5' to 3', 3' to 5', इसको बहुत अगर हीट देंगे, अगर बहुत हीट देंगे जो कि देना जरूरी है, तो ये जो अंदर, इसके अंदर जो बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो क्लीव हो जाएंगे, वैसे ब्रेक कर जाएंगे, और हमारे पास क्या मिल गया, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए। तो अभी ये 5' 3' 3' 5' हो गए। अच्छा, अब हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, इसमें एनीलिंग करेंगे। एनीलिंग, एनीलिंग में क्या करेंगे, हम 2 प्राइमर्स ऐड कर देंगे ना। व्हाट आर प्राइमर्स, प्राइमर्स आर स्मॉल सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो 2 प्राइमर हम ऐड करेंगे यहाँ पे। एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 5', ये हो गया 3', एक प्राइमर यहाँ पे और एक प्राइमर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये 5', ये 3'। अब हम हमारा पूरा सेटअप रेडी है। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, जो कि हमारा है थर्ड स्टेप, जो कि हमारा है एक्सटेंशन। यहाँ पे अब हम एक क्या करेंगे, एक पॉलीमरेज लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को ये हीट भी तो सहना है, इसलिए हम क्या पॉलीमरेज लेंगे, टैक पॉलीमरेज, जो कि सह लेगा इतना हीट। मिलता है किससे टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस, एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है जो कि रहता है बहुत ही हीट में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहता है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। उसके अंदर से जो हमको डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा वो ये हीट को सह लेगा। तो ये जो अब ये क्या होगा, ये पूरा जो थर्ड स्टेप क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। मतलब ये जो प्राइमर्स है वो इस तरह और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा, ये 2 स्ट्रैंड मिल जाएंगे और ये 2 स्ट्रैंड मिल जाएंगे। मतलब इस स्ट्रैंड से हमको न्यू स्ट्रैंड मिल गया और इस स्ट्रैंड से हमको एक न्यू स्ट्रैंड मिल गया। तो 4 स्ट्रैंड मिल गए हमको एक बार पीसीआर करने से। तो ऐसे ही अगर हम 30 साइकिल्स रन करेंगे, 30 cycle of PCR run करेंगे, so at the end of 30 cycles we will get about 1 billion copies. So that's a huge amount of DNA, 1 billion copy of DNA in barely 1 hour. So that's a very less time. So for the fourth step is insertion of rDNA into host cell. Insertion of rDNA into host cell. इससे हम क्या करेंगे, हमारे पास अब क्या मिल गया, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया है जिसके अंदर प्लाज्मिड और हमारा इंसुलिन का जीन है। उसको हमको घुसाना है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसाएंगे तो वी नीड टू मेक द सेल बैक्टीरियल सेल्स कॉम्पिटेंट। We can make the cells competent by heat shock method if we apply heat and repeatedly heat and ice. अगर ऐसे करें तो बैक्टीरिया के वॉल के अंदर, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे। उस पोर्स से हम इजीली आरडीएनए को एंटर करवा सकते हैं। सो अगर बैक्टीरियल सेल जो कॉम्पिटेंट हो जाए तो 2 तरीके का हो सकता है बैक्टीरियल सेल। After making the cells competent and after incubating the cells, after making the cells competent and after incubating the cells with rDNA, 2 फेट हो सकता है बैक्टीरिया का। एक बैक्टीरिया रह जाए ऐसे और उसके अंदर कोई अगर प्लाज्मिड आरडीएनए नहीं, आरडीएनए का मतलब क्या है, एक प्लाज्मिड और छोटू सा प्लाज्मिड और उसके अंदर हमारा इंसुलिन का जो जीन है वो। तो क्या हो सकता है कि दो फेट, तो एक फेट में हो सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर घुसे ही ना, आरडीएनए घुसे ही ना, तो उसको हम कहेंगे अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया या फिर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल। और एक फेट हो सकता है जो कि हमको चाहिए भी कि बैक्टीरिया के अंदर ये चीज घुस जाए, ये आरडीएनए हो गया और इसके अंदर हमारा जो जीन है वो ऐसे घुस गया, जो कि हमको सिलेक्ट करना है, हमको इसको ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और प्लाज्मिड के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा हथियार होता है जिसको जो रेजिस्टेंस जीन होता है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जीन है जो कि है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बैक्टीरिया के पास ये जीन, ये हथियार रहे तो उस बैक्टीरिया के अंदर अगर हम एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन दे तो इस बैक्टीरिया के इस जीन के मदद से बैक्टीरिया का कुछ बिगड़ेगा नहीं एम्पिसिलिन से। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, कल्चर प्लेट लिया हमने और उसके अंदर हमने बैक्टीरिया हम ग्रो कर रहे हैं, कॉलोनी ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करने के टाइम पे हमने एंटीबायोटिक ऐड कर दिया एम्पिसिलिन। एंड आफ्टर सम टाइम
we are seeing that this colony and this colony died and only this colony survived. That means that this colony is actually, this colony, that is a transformed colony. Transformed colony मतलब जिस कॉलोनी, जिस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये प्लाज्मिड घुस गया है और जो कि हमको चाहिए. सो एंड दिस colony and this colony, these two colony are the non-transformed untransformed colony, मतलब जिसके अंदर, मतलब ये colony जिसके अंदर प्लाज्मिड घुसा ही नहीं. तो हमको ये सिलेक्ट करना है. तो हम आसानी से, हम पहचान में आ गया हमको कि ये इसी कॉलोनी है, ये ही कॉलोनी है जिसको हमको सिलेक्ट करना है. तो हमने ये आसानी से सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स. तो ये हमारा हो गया. अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगे? नेक्स्ट स्टेप, सो द फिफ्थ स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप. फिफ्थ स्टेप इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. obtaining the foreign gene product. अब हमारा हो गया, हमारा बैक्टीरिया सेल के अंदर हमारा जो जीन है वो घुस गया है. अब हमको इस जीन से क्या करना है? ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट करके प्रोडक्ट बनाना है. तो ये हम इसका तीन टाइप में कर सकता है. एक हमारा है, वन इज लैबोरेटरी मेथड, ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप हमारा जो है वो है कंटिन्यूअस कल्चर मेथड, और एक थर्ड स्टेप भी है जिसको हम कहेंगे बायोरिएक्टर मेथड. सो लैबोरेटरी मेथड, नाम से ही पता चलता है कि लैबोरेटरी मेथड में हम लैबोरेटरी में ही ग्रो करेंगे बैक्टीरियाज को कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, and from that we can get the protein by transcribing and translating. The insulin gene will give the insulin protein, but this will be in small scale. तो ये इंडस्ट्री में तो इसको हम इससे काम बनाए नहीं बन पाएगा. कंटिन्यूअस कल्चर मेथड में क्या होता है? अगर हम फ्रेश मीडिया ऐड करते रहे, एक वेसल है ऐसा, तो फ्रेश मीडिया यहाँ से इनपुट करेंगे तो यहाँ से जो यूज्ड अप मीडिया है वो निकल जाएगा. इससे भी थोड़ा बहुत हाई यील्ड मिलता है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं. और जो बायोरिएक्टर मेथड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आउटपुट बहुत ज्यादा देता है. ये हम यूज करते हैं फॉर हाई यील्ड. बहुत ही अगर हमको हाई यील्ड चाहिए प्रोटीन का, मतलब इन दिस केस, फॉर दिस एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन का, तो हम बायोरिएक्टर यूज करेंगे जहां पे हम लार्ज ऐसे वेसल यूज करेंगे. लार्ज वेसल यूज करके हम लार्ज स्केल में हम प्रोटीन इंसुलिन है जो वो बना लेंगे. और यहाँ पे जो वेसल हम यूज करेंगे वो जनरली जो वेसल यूज करते हैं वो स्टरिंग टाइप होता है. स्टरिंग टाइप, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर. अब हमारा आ जाता है, तो हमारा इसमें से हमारा जो आउटपुट था, मतलब एंड रिजल्ट क्या मिला? एंड रिजल्ट में हमको क्या मिल गया? प्रोटीन मिल गया. प्रोटीन किसका? प्रोटीन फॉर दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग इंसुलिन. सो इंसुलिन का प्रोटीन मिल गया. ठीक है, ये हमारा आउटपुट है. अब हम जाएंगे हमारा लास्ट जो स्टेप है उसमें, सिक्स स्टेप, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसमें हम क्या करेंगे? हमारा जो इंसुलिन का प्रोटीन तो मिल गया, अब इसको हम मार्केटिंग भी करना है. मार्केटिंग करने के लिए कोई भी प्रोटीन अगर लैबोरेटरी में, फिर बायोटेक के इंडस्ट्री में बना, उसका अगर हमको मार्केट तक ले जाना है तो उसका बहुत कुछ करना पड़ेगा. फर्स्ट तो हमको क्लिनिकल ट्रायल्स चलाना पड़ेंगे. क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों? क्योंकि हमने ये बना तो लिया लैब में, लैबोरेटरी में या फिर बायोटेक के कंपनीज में, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा ये इंसान पे काम भी करेगा या नहीं? तो वो देखने के लिए हमको कुछ ट्रायल्स चलाना पड़ेगा. क्लिनिकल ट्रायल्स हम ये कर सकते हैं माउस के ऊपर, या फिर चिंपैंजीज के ऊपर, या फिर रैट्स, कुछ में भी ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल्स बाय स्ट्रिक्ट लीगल मेथड्स हम वो कर सकते हैं. और सेकंड हमको क्वालिटी चेक भी करना पड़ेगा. क्वालिटी चेक के प्रोटीन तो बन गया लेकिन वो इफेक्टिव है भी या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ेगा. तो इसके बाद हम ये मार्केट पे हमारा जो प्रोटीन बन गया उसको हम बेच सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो एक समरी दे देती हूँ आज का जो सेशन था उसका. तो समरी क्या है? तो हमने देखा कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया. तो प्रॉब्लम क्या था कि एक हमने पेशेंट लिया था जिसको डायबिटीज है, तो उसमें इंसुलिन का लेवल बहुत कम है, तो हमको इंसुलिन बना के उसको देना है. तो हमने कैसे किया? तो फर्स्टली वी आर आइसोलेटिंग द डीएनए फ्रॉम
any cell, any kind of cell in which the DNA is present. For our this instance, for our this example, we are using human cell. And secondly, we are cutting the DNA by using specific restriction endonuclease. Third step was that we are amplifying the DNA by using a very interesting technique called PCR. The fourth step was we are inserting the recombinant DNA into bacterial cells and making the bacterial cells transform bacterial cells. फिफ्थ स्टेप वाज दैट वी आर ऑब्टेनिंग द जीन का जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब जो प्रोटीन प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है वो हमको मिल पा रहा है. और जो सिक्स स्टेप था वो था डाउनस्ट्रीम, मतलब जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल करके और क्लिनिकल ट्रायल्स रन करके वो. सो दिस वाज द होल टॉपिक. थैंक यू.